وہ کمرے میں آتی جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹ رہی تھی۔ دل میں عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں سے آنسو نکل کر گلابی رخساروں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ نظروں کے سامنے بار بار مروان کی جانب دیکھتی بسمل کی محبت سے بھری نگاہیں گھوم رہی تھی۔ وہ جو کسی کے سامنے نہ ہارنے والی بس اس شخص کے سامنے ہار جاتی تھی۔ وہ صوفے پہ گرتی اپنے ہی غم میں ڈوبی ہوئی تھی جب کسی نے کمرے کا دروازہ نوک کیا تھا۔ وہ گڑبڑائی مگر جانتی تھی کہ دوسری جانب کون ہوگا۔ تیزی سے اپنی سانسیں خشک کی تھی۔ واش روم میں جا کر اپنا چہرہ دھویا، خود کو بالکل نارمل ظاہر کرتی وہ واش روم سے مصروف سی باہر آئی تھی۔ کون؟ آواز میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں ہوں آئرہ، دوسری جانب سے اس کی سپاٹ سی آواز سنائی دی تھی۔ اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ کمرے کے دروازے تک آئی تھی اور کھٹ سے دروازہ کھولا تھا۔ جی سلطان صاحب، بتائیں کیا کام ہے؟ وہ دروازے میں استدعا سپاٹ انداز میں آئیبرو اٹھا کر بولی۔ مروان نے آئیبرو اٹھا کر بغور اس کے ریبروں کا جائزہ لیا جن میں ذرا لچک نہیں تھی۔ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے تم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں گھسیٹ کر لاتا روم لاک کر چکا تھا۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ حورنک ہوئی جس کے چہرے پر عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ آنکھوں میں بے پناہ سرد مہری سموئے سختی سے گویا ہوا۔ اس نے آئیبرو چلائے۔ کیا کام ہے جلدی بولو۔ اس کے سر تاثرات سے مقابل کو چندانہ فرق نہیں پڑا تھا۔ میری بات غور سے سنو۔ کل تم عدالت نہیں آؤ گی اور یاد کر لو تم خطیب عالمگیر کا کیس نہیں لڑ رہی ہو۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ وہ اس کے تحکمانہ انداز پر سینے پر بازو لپیٹتی تنزیہ مسکرائی جو ٹو سیٹر صوفے پر پہل کر بیٹھا تھا۔ اور سلطان صاحب کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بات مان جاؤں گی؟ اس نے چار قدم چلتے نزدیک آ کر آئیبرو اٹھائے۔ تو مطلب نہیں مانو گی؟ اس سے غصہ آیا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اپنی پیاری منگیتر کو چھوڑ کر اوپر کیا لینے آئے ہیں۔ آئرہ دماغ خراب نہ کرنا میرا، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ خوش فہمی ہے جناب کی کہ میں آپ کی ان رابے بازیوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ مروان کے سپاٹ لہجے میں کہے گئے لفظوں نے اس کے پاؤں کو زنجیر کر دیا تھا۔ مطلب تم نے مروان سلطان کے وجود سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ کڑے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ وہ پلٹی نہیں تھی۔ بولو خاموش کیوں ہو؟ اس کی نظریں آئرہ کے الجھے گیسوؤں شقوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسے لمبے بال چمکیلے اس وقت پشت بکھیر رکھے تھے جو ہمیشہ کی طرح اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر آ گئے تھے۔ اگر حق و انصاف کی جنگ میں میرا تمہارے وجود سے دستبردار ہونا لازم و مطلوب ہے تو پھر میں یہ قربانی خوشی خوشی دوں گی۔ وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی روم سے نکل گئی تھی۔ مروان نے اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیز خوبی محسوس کی تھی مگر اس کے لفظ توقع کے عین مطابق ہے۔ وہ تیش موڑ کر کھڑا ہوتا اور ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں زمین بوس کرتا، خود بھی اس کی پیروی میں نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے عدالت میں اس وقت خاصی گہما گہمی تھی۔ وکلا کے لیے مخصوص نشستوں پر دونوں پارٹیوں کی طرف سے وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی موجود تھے۔ البتہ سامعین کے لیے مخصوص نشستوں میں موجود لوگ عدالت کی کارروائی شروع ہونے کے منتظر تھے۔ آئرہ حد سے زیادہ پرجوش تھی، البتہ مروان کے چہرے کا اطمینان تھا۔ اجمل صاحب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ عالمگیر خاندان حد سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جج صاحب کے آتے ہی عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحات قبل جب آئرہ کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اب وہاں کشمکش میں گہری تذبذب کا شکار تھی کیونکہ وہ اہم گواہ ابھی تک عدالت نہیں پہنچا تھا۔ عدالت سے ایک بار تاریخ مل چکی تھی، ضمانت ابھی بھی ناممکن ہو سکی تھی۔ عمر عالمگیر صاحب، آپ عدالت کے فیصلے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ قتل کو 1.5 ماہ ہونے کو آیا ہے، خطیب عالمگیر کی ضمانت نہ ہو سکی، کیا واقعی آپ کا بیٹا جہانگیر سلطان کا قتل ہے؟ وہ جیسے ہی باہر آئے میڈیا کے لوگ ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ عمر صاحب سب سے نظریں چراتے اپنی گاڑی میں بیٹھے پروٹوکول کی ہمراہی میں وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ البتہ انہیں رہ رہ کر آئے پر پیش آ رہا تھا جو خود بھی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ مروان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اجمل صاحب پر لگایا گیا قتل کا الزام جھوٹا ہے یا اس میں واقعی دشمن کی کوئی چال ہے؟ میڈیا اب ان کی جانب آیا تھا۔ آئرہ مروان کو مسکراتا دیکھ خود بھی تیزی سے کورٹ سے سیدھی لا فرم پہنچی تھی۔ اور کریں اس لڑکی پر اندھا اعتبار۔ بس دیکھ لیا، وہ لڑکی کسی کی سگی نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ شمیم آرا بیگم غصے سے کھولتی مسلسل آئرہ کی ذات کے حوالے سے متنفر کچھ نہ کچھ بول ہی رہی تھی۔ عمر صاحب کا غصے سے برا حال تھا، جبھی ملازم کی آواز پر وہ چونک گئے تھے۔ سر وہ آئرہ میڈم آئی ہیں، مہمان خانے میں بٹھاؤ اسے۔ وہ نخوت سے حکم دیتے سر جھٹک گئے۔ ہمارے ساتھ چلو شمیہ آرا، اور یاد رہے کہ تمہارے منہ سے کوئی بھی سخت لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ بیوی کو تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولے تھے۔ آپ ہی جا کر ملیں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس لڑکی کو منہ لگانے کا۔ وہ شدید بدچن دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر یہیں رہو، اور خبردار جو تم نیچے آئیں۔ وہ درست لہجے میں بولتے خود نیچے کی جانب بڑھے جہاں آئرہ ان کی منتظر تھی۔
देख ली तुमने इस लड़की की खुदसरी? तुम्हारे मना करने के बावजूद वो आज अदालत आई थी और तुम कहते हो कि हम तहामुल का मुज़ाहिरा करें। अजमल साहब बेटे को पुरसोट सा सोफ़े पर सर गिराए बैठा देख तंज़िया लहज़े में फनकारे, हाथों में दबा सिगार लबों से लगाया था। अगर बाप की इज़्ज़त का जनाज़ा निकालने के लिए मज़ीद कोई कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो। इसकी खामोशी बुरी तरह खल रही थी। परसों मंगनी के इवेंट की सारी तैयारियां हो गई? इसने अचानक मौजू तब्दील कर दिया था। हाँ, सोच रहा हूँ मंगनी के साथ-साथ तुम्हारा निकाह भी करवा दूँ। वो दूर तक की सोच कर बैठे थे। बाबा प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर काम में जल्दबाज़ी की जाए। वो चिढ़ गया था। अगर तुम अभी भी इस लड़की को दिल में बसाए बैठे हो, तो एक बात याद रखना, मैं अब अपनी ही औलाद की मुखालफत हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो सख्त लहज़े में सिंघाड़े थे। तो फिर क्या चाहते हैं आप? वो बराह रास्त बाज़ पुर्स पर उतर आया था। यही कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की के इश्क का भूत अपने सर से उतार फेंको। वो तंबी लहजे में बोया हुए, आपके कहने पर कर तो रहा हूँ मंगी, और क्या करूँ बोले? वो जिद हो गया था। मेरी नस्ल पर एक एहसान और कर दो बरखुरदार कि सियासी मामलात में जरा दिलचस्पी ले लो। अगला वजीर आजम हमारी पार्टी का होगा और मैं ये बात बहुत वाज़े अल्फाज में बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। वो चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी सजाए मतवाज़न लहजे में गोया हुए थे। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। वो नखुवत से सोचते सर हिला गए, साथ ही हाथ में मौजूद सिगार सुलगाया। फूफो के घर काट देने आप खुद जाएंगे या ये काम भी मैं खुद ही सर अंजाम दे दूं? वो बिलाखिर खंकार का इस्तेफामिया नजरों से देख इस्तेफसारिया बोला तो अजमल साहब ने एक कड़ी निगाह अपने खूबरू बेटे पर डाली, जिसकी सियाह आंखों में बेपनाह संजीदगी सिमट आई थी। तुम्हें तो बस इस लड़की के करीब रहने का मौका चाहिए होता है, तो बेहतर यही है कि वसूल काम भी तुम खुद ही कर लो। वो तमस्कर भरे लहजे में बोलते सुल्तान महल के हाथ से निकलते चले गए, जबकि इसकी पुरसोच नजरों ने दूर तक इनका पीछा किया था। वो इस वक्त आलमगीर हाउस के शानदार से मेहमान खाने में मौजूद दिलचस्पी से ज़बाइश के घर से दीवारों पर सजी बड़ी नाल वाली बंदूकें देख रही थी। एक तरफ चीते की खाल दीवार पर सजी रखी थी, बारहसिंगा का सिंह। आयरा ने मुस्कुरा कर सर झटका। वो जिस कबीले और हस्ब नफ्स से ताल्लुक रखते थे, ये सब इनके लिए शान का बाइस और सजावट और रिवायात का हिस्सा था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आयरा इन्हें देख एहतरामन फौरन खड़ी हो गई थी। जिस बाप का बेटा एक माँ से जेल में हो, वो भला कैसा हो सकता है? इसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखते निढाल लहजे में गोया हुए थे। आई एम रियली सॉरी अंकल कि मेरी वज़ह से आपको इतनी सख्ती उठानी पड़ी, मगर आप फ़िक्र ना करें, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में ही आएगा। वो ज़रा शर्मिंदगी से बोली तो वो समझ कर सर हिला गए। सुना है कि 2 दिन बाद तुम्हारी कज़िन की मंगनी है। इन्होंने जानबूझकर ज़िक्र छेड़ा। आयरा का चेहरा खजालत के बायस सुर्ख़ पड़ गया था। जी, ऐसा ही है। वो अपनी कैफ़ियत पर काबू पाती बस इतना ही कह सकी। तो फिर तुम हमारे दुश्मनों की खुशियों का हिस्सा तो ज़रूर बनोगी। आफ्टर ऑल अजमल सुल्तान की भांजी जो ठहरी। वो नागवार लहज़े में तंज़िया बोले, अंकल ये हमारा फैमिली मैटर है। इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आखिरी फ़ैसला तो मम्मी का होगा। वो बात को मज़ीद तोड़ दिए बगैर गोया हुई थी। वो दरअसल मुझे आपसे मेरे और खतीब के रिश्ते से कुछ मुताल्लिक ज़रूरी बात करनी थी। वो ज़रा झिझक कर गोया हुई, खैरियत? वो ठटक गए थे। जी, दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आप खतीब को समझा दें। फ़िलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। और इस बार बिल्कुल सपाट से लहज़े में बोली तो इनकी कुशादा पेशानी पर शिकनों का जाल बुन सा गया था। कहना क्या चाहती हो लड़की? इनका लहज़ा खफ़ा सा था। अंकल जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कह चुकी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। वो सपाट अंदाज़ में बोलती वहाँ से निकल आई थी, जबकि वो कितनी ही देर इसकी पुर्ज़ तकते रह गए थे। वो आलमगीर साहब के घर से निकलने के बाद लॉ फर्म जाने के बजाय मरवान को मैसेज सेंड करती खुद ही इसके फ्लैट पर आ गई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये वो जंग सिर्फ एक ही सूरत जीत सकती है, वो भी तब जब मरवान इसके साथ खड़ा होता, वरना अपने मामू के असर और रसूख से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी। अस्सलाम वालेकुम आयरा बीबी। ये मरवान का ज़ाती फ्लैट था, वो जो कभी कंबाइन स्टडी के लिए अपने दोस्तों के साथ सैर किया करता था, मगर फ़िलहाल ये खाली था। वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी थी, मगर आज यहाँ आने का मकसद कुछ और था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो ज़यान? वो मुतवाज़िन लहज़े में गला खंगार कर गोया हुई। मैं ठीक हूँ आयरा बाजी, आप कैसी हैं? वो हाल-अहवाल दरियाफ़्त कर रहा था। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? वो डिस्पेंसर पानी का गिलास भरती किचन के हाई चेयर पर ही बैठ गई थी। पढ़ाई अच्छी चल रही है, बस कुछ दिनों में बोर्ड के इम्तिहानात हैं, इसने ज़रा मसरूफ़ से अंदाज़ में जवाब दिया। ओह! वेरी गुड। अच्छा ज़रा 1 कप कॉफ़ी का तो बना दो। इसने रुखते सर को 2 उँगलियों से दबाते नर्म लहजे में कहा।
तो वो जल्दी से सर हिलाता इसके हुक्म की तकमील करने लगा, जबकि वो पुरसोच सी मोबाइल स्क्रीन को देख रही थी, जहाँ मरवान की जानिब से शौक सा जवाब मौसूल हुआ था। चीप आदमी, वो बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? वो चौंका। नहीं, तुम ज़रा जल्दी से कॉफ़ी बनाकर मेरे रूम में ले आना, मैं अब ज़रा आराम करूँगी। वो इसकी आमद से कब कुछ देर आराम करना चाहती थी। बस इसी गर्ज से इस फ्लैट में मखसूस अपने रूम की जानिब बढ़ी थी। मरवान, तुम भूल रहे हो कि आज का सारा दिन तुमने मेरे नाम किया था। यार, 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है। एटलीस्ट तुम अब तो मुझे वक़्त दो। बिस्मिल इसकी जल्दी-जल्दी की गर्दान पर ज़िच हुई थी। कम ऑन बिस्मिल, आज मैं सुबह से तुम्हारे साथ शॉपिंग पर हूँ। यार, अब रात के 8 बज रहे हैं। वो इस लड़की की एक ही गर्दान पर ज़िच हो गया था। ओके, बस हम डिनर साथ कर लें, फिर तुम मुझे घर ड्रॉप कर देना। इसने इसे चढ़ता देख बीच की राह निकाली। नो, नो मिस बाबा साहब की कॉल आई है, मुझे जल्दी ही घर पहुँचना है, डिनर फिर कभी सही। वो तेज़ी से इनकारी हुआ क्योंकि आयरा के पिछले 2 घंटों में कोई 200 मैसेज आ गए थे, वो काफ़ी देर से फ्लैट पर इसका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, वो लपचपाती मुँह बनाकर बोली तो मरवान ने एक सुकून का साँस खारिज किया। थैंक यू सो मच, मगर यहाँ मुझे तुम्हारा एक फ़ेवर और चाहिए, और वो ये कि यार प्लीज़ तुम घर खुद ही चली जाओ या 1 मिनट। ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। अगर बाबा साहब का हुक्म ना होता तो मैं कभी तुम्हें अकेला ना छोड़कर जाता। वो मोबाइल स्क्रीन पर तेज़ी से उँगलियाँ फेरता बड़ी उजलत में दिखाई दे रहा था। बिस्मिल को इसका अंदाज़ एक आँख न भाया था। थैंक यू सो मच, मैं खुद चली जाऊँगी। वो दाँत किचकिचाकर बोलती, मरवान की सुनो तो सही की गर्दान को सिरे से नज़रअंदाज करती, पैर पटकती वहाँ से निकल आई थी। ओह माय गॉड! ये कौन-सी मुसीबत मोल ले ली है मैंने। मरवान ने एकदम झुरझुरी सी ली थी। चलो आयरा बीबी, आज तुम्हारे होश ठिकाने लगाते हैं। वाक़ई बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे। वो गर्दन सहलाता अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। प्रोटोकॉल की तमाम गाड़ियाँ वो वहीं से वापस रवाना कर चुका था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अजमल साहब को अब इन मुलाकातों का भी इल्म हो। इसे मरवान का इंतज़ार करते-करते दोपहर से शाम और अब शाम से रात होने को आई थी। मगर इसका कोई पता नहीं था, वो एक नींद लेकर भी उठ गई थी। वॉशरूम से निकलती वो अभी तौलिए से चेहरा थपथपा रही थी, जब इसे महसूस हुआ कि बाहर कोई आया है, मतलब मौसूफ को अब वक़्त मिला था यहाँ आने का। वो भी बाहर जाने का सोच ही रही थी कि वो दरवाज़े पर दस्तक देता, इसे बगैर सोचने-समझने का मौका दिए अचानक से कमरे में दाखिल हुआ था। आयरा अपने हुलिये की वजह से सटपटा कर रह गई थी। एक नज़र सामने पुरशौक नज़रों से घूरते मरवान को देखा और फिर एक नज़र बेड पर रखे अपने दुपट्टे पर डाली। इसका यूँ अचानक कमरे में दाखिल होना इसे शर्मिंदगी में मुब्तला कर गया। इस बिस्मिल गर्देज़ी के साथ रह रहकर क्या तुम अखलाकियात और अदब-ओ-आदाब भी भूल गए हो? लम्हों के हज़ारवें हिस्से में खुद की हालत पर काबू पाती दुपट्टा उठाने की गर्ज से तेज़ी से बेड की जानिब बढ़ी, जबकि इसने मुस्कुराती निगाह अपने दरमियान हाइल 2 कदमों का फ़ासला अबूर करते तेज़ी से इसका हाथ पकड़कर अपनी गिरफ्त में लिया। अचानक इब्तिदा पर वो गड़बड़ाई। ये क्या बदतमीज़ी है मरवान! अपनी हालत पर शर्मिंदा होने के बावजूद वो बड़ी-बड़ी आँखें निकालती घूर कर बोली थी। क्या क्या मैंने? आँखों में शोख जज़्बात लिए वो मुसलसल इसे टीज़ कर रहा था, जो अब ख़ाइफ़ सी इससे नज़रें चुरा रही थी। मज़ाहमत मुसलसल जारी थी। ऐसा तो कभी-कभार ही होता था कि वो घबरा जाए, वरना तो मुक़ाबिल को चारों शाने चित करना इसका पसंदीदा मशग़ला था। ये हाथ छोड़ो मेरा, निगाहों से इशारा करते इसे दाँत पीस कर भरपूर मज़ाहमत की, मगर इसकी गिरफ्त सख्त थी। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। वो झटके से वही हाथ कमर पर कसता ज़ुबानी लहज़े में बोला था, जबकि दूसरा हाथ इसकी स्याह घुंघरेली ज़ुल्फ़ों से उलझ गया था। ओह रियली? जब ये आज सारा दिन तुम इस छम्मक छल्लों का हाथ थाम कर बाज़ारों की खाक छान रहे थे, वो भी तंज़ करने से बाज़ नहीं आई थी। ओह! तो तुम जेलस हो रही हो? बालों में लगा कैचर उतार कर वो इसके घुंघराले बाल पुष्ट पर बिखेर गया। वो झलबला कर रह गई। मरवान, हाथ छोड़ो मेरा, मैंने तुम्हें यहाँ ये छिछोरापन करने के लिए नहीं बुलाया है। एक झटके से अपना हाथ इसकी सख्त गिरफ्त से निकालती घूर कर बेड की जानिब बढ़ी और साथ रखा दुपट्टा उठाकर सीने पर फैलाया था। बालों में हाथ फेरता वो खुद को कंपोज़ करता एहतियातन कमरे का दरवाज़ा लॉक करता बेड के सिरहाने तक आया, जहाँ वो कातिल हसीना चुपकली की तरह दीवार से चिपकी इसे बहकाने के तमाम हथियारों से लैस अब खश्मगीन नज़रों से घूर रही थी। तो फिर किसने बुलाया है? इसका मखमूल लहज़ा और हद दर्जा गुर्बत आयरा को बुरी तरह सटपटाने पर मजबूर कर गई। इंसान बनकर ज़रा फ़ासले पर बैठोगी तो बताऊँगी ना कुछ। वो दाँत पीस कर एक बार फिर अपनी जानिब बढ़ता, इसका हाथ हवा में थाम कर झटकती, दुरुस्त लहज़े में बोली। मरवान के लबों पर मुस्कुराहट उभर कर मदम हुई थी। मतलब तुम मुझसे घबरा रही हो मिस इलाही? वो इसके चेहरे के उड़े-उड़े रंग देख मज़ीद शेर हुआ। घबराऊँ तो मैं अपने होने वाले बच्चों के बाप से भी ना। तो फिर आप क्या चीज़ हैं सुल्तान साहब? इस बार वो लहज़े में
असली हरदर्मी से मोहित तंजिया मुस्कुराई थी, जबकि वो जो इतने दिनों बाद इसे सामने देख अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख सका था। इसके बेबाक लहज़े पर कहका लगाता ही एकदम बेड पर गिरा था। कुछ रोज़ कबल मम्मा मुझे बिस्मिल से शादी के लिए मजबूर करती पूछ रही थी कि ऐसा क्या है आयरा में, जो तुम्हें इसके आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। अब मैं अपनी मासूम माँ को क्या बताऊँ? वो ज़रा फासले से बैठती आयरा के दमकते सरापे को अपनी शोक निगाहों में समाता शरारत से बोला था। इसने घूर कर देखा। "मरवान, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो?" वो दाँत पीस-पीस से छुई, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। "क्या सुनाना है तुम्हें? बोलो, मैं सुन रहा हूँ।" वो बुला फिर एक गहरी साँस खारिज करता इसके सुनने पर आमादा हुआ, जो इसकी बेबाक निगाहों से ख़ाइफ़ तिबक कर इससे फ़ासला कायम करती सोफ़े पर जा बैठी थी। "तुम मुझे यहाँ करीब रहकर भी अपनी बात सुना सकती थी।" इसने घूर कर देखा। "बकवास मत करो और मेरी पूरी बात सुनो पहले।" इसने घूरा तो वो बेड पर सीधा होकर लेटा इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो मूंगिया रंग सलवार सूट में मखबूस बिखरे बालों को सवारती इसे बुरी तरह तड़पा रही थी। "मामी कैसी हैं?" इसने मुतवाज़िन लहजे में गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा। "कैसी होंगी?" इसने एक अचट्टी सी निगाह डाली। "और मामू?" इसने सर झटका। "आज कोर्ट में तुम्हारे सामने थे, खुद पूछ लेती। मुझसे किस खुशी में पूछ रही हो?" वो बिगड़ा। "और आपकी होने वाली मंगेतर साहिबा, वो कैसी हैं?" इसके लहजे में जलन वाज़ेह थी। दिलकश, हसीना, गोरे गालों और सुनहरे बालों वाली। वो ख़यालों में गुम इसे छेड़ने की गर्ज से बोला। जिसने पास रखा कुशन उठाकर इसकी जानिब उछाला, तो वो जो फुर्ती से कैच कर चुका था, होठों पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। "शर्म नहीं आती तुम्हें?" नामहरम लड़कियों को ताड़ते हुए इसने घूरा तो मरवान की ज़बान में एक बार फिर खुजली हुई थी। जब महरम तक रसाई ही मुमकिन नहीं हो सक रही, तो नामहरम से ही दिल बहलाना पड़ेगा। इसने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की थी। "मरवान, कितने चीप हो तुम!" इसका बस नहीं चल रहा था, वो इस आदमी का सर फाड़ देती। "क्या मेरा सर फाड़ने का दिल कर रहा है? तो जाना, ज़रा नज़दीक आकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो ना, या फिर मैं वहाँ आ जाता हूँ।" इसके तपे-तपे तासुरात से वो खूब महफ़ूज़ हो रहा था। "खबरदार, जो तुम अपनी जगह से हिले भी तो।" इसे तेज़ी से कमरे से भागने के लिए पर तोले। परवान की मुस्कुराहट गहरी हुई। "लड़की, कब तक तड़पाने का इरादा है तुम्हारा? मैं तो तुम जैसी बददिमाग से इश्क करके भी पछता रहा हूँ।" मिलाकर वो वापस बैठ कर गिरता गंभीर लहजे में बोला, तो वो वापस अपनी जगह पर बैठी। "ये तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या इरादे हैं? ये इतने बड़े पैमाने पर मंगनी का फंक्शन रखने का मकसद?" इस बार वो संजीदा होती थी कि शकुतूनों समेत खोया हुई, कोई ख़ास मकसद नहीं, बस बीवी लाने की तैयारी कर रहा हूँ। वो हूँ न हूँ शरारत के मूड पे था। "तो मज़ाक के मूड में नहीं हूँ मरवान," वो सपाट लहजे में बोली। "मज़ाक के मूड में तो मैं भी नहीं हूँ जाने मरवान, इसलिए कह रहा हूँ खुद करीब आ जाओ। अगर मैं वहाँ आया तो पछताओगी।" वो इसके तपे तासुरात देख खूब महफ़ूज़ हो रहा था, जहाँ अब हया की लाली भी फूट पड़ी थी। "तुम्हारे अंदर बहुत सारे ठरकी कीड़े घुस गए हैं, जब ये मर जाएँ तो फिर बात करना मुझसे।" वो तब कर बोलती कमरे से बाहर की जानिब बढ़ने लगी, तो वो तेज़ी से उठकर इसका हाथ पकड़े वापस रूम में लाता, सोफ़े पर बिठाता, खुद मुकाबिल सोफ़े पर ज़रा फ़ासले से बैठ गया था। "बोलो, क्या कहना चाहती हो?" इस बार वो भी संजीदगी का लिबाड़ा ओढ़ चुका था। इसने गहरी साँस खारिज की। "हमारे बारे में क्या सोचा है तुमने? मामू-मामी से कब बात करोगे तुम?" अरमान ने घूर कर इस चालाक लड़की को देखा, जो अब इससे फँसाने के मूड में थी। "ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? वरना जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे लग रहा है तुमने अपने साथ-साथ मुझे भी टिका कर रखा है।" वो घूर कर बोला तो आयरा ने इस्तेज़ाइया आईब्रो उठाए। "वैसे मैं तो हरगिज़ भी तुम्हारी खातिर खुद को नहीं लटकाने वाला।" वो फिर शौक लहजे में बोला। वो आँखों की सियाह पुतलियाँ घुमा कर रह गई। "चलो, अभी घर साथ चलते हैं और मिलकर सब बड़ों से बात कर लेंगे।" मरवान ने आईब्रो उठाई। ये लड़की न जाने क्या चाह रही थी। "क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने?" वो इसके बिगड़े तासुरात भाँप कर बोली। "अच्छा, कल तो कोई कह रहा था कि हक और इंसाफ की जंग में मुझे अगर तुम्हारे वजूद से दस्तबरदार होना पड़ा तो मैं कुर्बानी खुशी-खुशी दे दूँगी।" इस बार वो तल्ख़ लहज़े में बोला। आयरा के लबों पर कातिलाना मुस्कुराहट रक़्सा हुई। "और तुमने झट बिस्मिल साहिबा से शादी का फ़ैसला कर लिया? इससे कीड़ा तोड़ निगाहों से घूरा। "फ़िलहाल तो मैं बाबा को नहीं छेड़ सकता। जो जैसा हो रहा है वैसा ही होने दो। अगर तुम अभी और इसी वक़्त इस ख़तीब आलमगीर के केस से दस्तबरदार हो सकती हो तो ठीक है, वरना रहो फिर ऐसे ही।" इस बार इसे भी साबका गुस्सा दबू कर आया था। "तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे?" वो जैसे बात की तह तक पहुँची। "कल रात में फूफो को हमारे अहम फ़ैसले के बारे में बता चुका हूँ।" इसने पुरसुकून अंदाज़ में बम फोड़ा। "क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है मरवान?
मम्मा पता नहीं क्या-क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। इसे एकदम अपनी माँ की फ़िक्र लाहक हुई। वो गड़बड़ा कर इसके नज़दीक आई। दूर रहकर बात करो। अपनी परेशानी में मुझे साथ ही बैठने लगी थी मेहमान की दबी हुई आवाज़ पर। जानबूझकर नज़दीक बैठ गई। पिटाई में तो इस लड़की का कोई सानी ही नहीं था। वेल मैं ये कह रही थी कि तुम शौक से मंगनी करो, शादी जो करना है करो, लेकिन अब तुम मेरे मामलात से दूर रहोगे। वो एकदम ही इसकी जानिब पलटी, इंगत-ए-शहादत उठाकर रौन कर दी, मरवान को तहस दिला गई, जिसने बामुश्किल इसका सख्त लहज़ा हज़म किया था। जल्दी उठो, तुम्हें घर छोड़कर मुझे काम से निकलना है। और हाँ प्लीज़, परसों फूफो के साथ मेरी मंगनी में ज़रूर आना जाना। वो इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपना साथ घसीटता हुआ गाड़ी में झटके से बिठाता जन से गाड़ी भगा ले गया, जबकि वो अवरनकों की मानिंद इसके अंदाज़ ही देखती रह गई थी। आयरा बेटा, आज वापसी में देर हो गई। वो घर में दाखिल हुई तो वहाँ हाल में मुंतज़िर सी बैठी अपनी माँ को देख इनके सवाल पर खामख़ा ही शर्मिंदा हो गई थी। जी मम्मा, वो दरअसल मुझे किसी काम के सिलसिले में मरवान के साथ थी। इसकी यही आदत सबसे अच्छी थी कि हालात जो भी हों वो हमेशा सच ही बोलती थी। आयरा, मानती हूँ कि तुम दोनों बचपन से एक-दूसरे से काफ़ी अटैच हो। फिर अब तो खैर हर रिश्ते में एहतियात लाज़मी है। इन्होंने ढके-छुपे लफ्ज़ों में इसे एहसास दिलाया तो वो खजल सी हो गई। सॉरी बाबा, आइंदा ख़्याल रखूँगी। इसने लब चबाए। नरवान छोड़ कर गया है? जी। इसे झट सर हिलाकर तस्दीक की। खाना लगवाऊँ तुम्हारे लिए? इन्होंने घड़ी में वक़्त देखा जो 11 का हिस्सा वो पूर कर रही थी। नहीं, वापसी पर हम लोगों ने डिनर साथ ही किया था। वो एक बार फिर शर्मिंदा हुई और वो सब इस मरवान सुल्तान की वज़ह से हुआ था, जो इतने गुस्से में होने के बावजूद 1 घंटा डिनर करने के चक्कर में ज़ाया कर चुका था। चलो फिर तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, शबा खैर। वो नर्म लहजे में बोलती खुद भी अपने रूम की जानिब बढ़ी थी, जबकि वो शर्मिंदगी के बायस सुर्ख़ चेहरा लिए तेज़ लहजे में बड़बड़ाती अपने रूम की जानिब भागी थी। सुबह सादिक से तुलू होता सूरज मामूल से हटकर आज बादलों में छुपा हुआ आग मचोली खेल रहा था। हर सू ठंडी दिलकश हवाओं का राज था। आज छुट्टी का दिन था। वो ज़रा देर से जागी थी। आज मरवान की मंगनी थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब ज़ुमर बेगम दस्तक देती रूम में दाखिल हुई थी। आयरा बेटा, उठ गई आप? इन्होंने मोहब्बत से बेटी के बाल संवारे। जी मम्मा, मैं बस नीचे ही आ रही थी। वो इनका हाथ थाम कर नम लहजे में गोया हुई। चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर आ गई हूँ। वो इसका हाथ थाम कर अपने साथ बेड तक लाई थी। क्या हुआ मम्मा, खैरियत? वो इन्हें तजब्बस का शिकार देख मुतज़ब्ब हुई। हाँ बच्चे, सब खैरियत है। मैं दरअसल तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। वो लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी। क्या पूछना चाहती हैं मम्मा? वो मुसलसल नज़रें चुरा रही थी। जो मरवान ने कहा, क्या वो वाक़ई में सच है? इस बार इनके चेहरे पर संजीदगी हिचकोले ले रही थी। जी, धीमी सी आवाज़ में गोया इक़रार जुर्म किया गया था, जबकि वो आँखें मीचती अपनी बेटी की हिमाकत पर ताव खाकर रह गई थी। इन्हें इन दोनों से ही इस तरह की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। इसके अलावा कुछ और वो जो पूछना चाहती थी, आयरा चाहकर इनकी बात का जवाब नहीं दे सक रही थी। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा। इसने जल्दी से इनकी सोच की तरदीद की। आज मरवान की मंगनी है, तो फिर ये सब क्या है? वो कड़े तेवरों से इस्तफ़सारिया गोया हुई। इसकी मर्ज़ी मम्मा। वो नज़रें चुरा गई। या मेरे अल्लाह, तुम दोनों क्या कर रहे हो? देखो आयरा, अगरचे ये तुम दोनों की कोई घटिया मंसूबाबंदी है तो एक बात याद रखना, इस बार भाई साहब तो क्या मैं तुम्हें नहीं बख्शूँगी। वो सख्त लहजे में बोली तो इसे अपने इर्द-गिर्द खतरे की घंटी बजतियाँ महसूस हुई। शाम को जाना है ना फंक्शन में, इसे जानबूझकर मौजू छेड़ा था। मुझे कोई शौक नहीं है तमाशा बनने का, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो शौक से जाओ। वो नागवारी से बोलती इसकी तबीयत साफ़ कर गई। मम्मा, मरवान क्या सोचेगा? इसने लब चबाए। ये तुम कह रही हो आयरा? तुम तो कभी अपना खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं करती। अब अपनी मोहब्बत शेयर करने जा रही हो। वो ताज्जुबी लहजे में सवालिया बोली तो वो नाचार खामोश हो गई। मम्मा, हम लोग जाएँगे, ज़रूर जाएँगे, वरना मामू लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि हम इनकी खुशियों में शरीक नहीं होते। इसने समझाने की नाकाम कोशिश की थी। कॉल मिला मरवान को, अभी खबर लेती हूँ इसकी। आखिर ये लड़का चाह क्या रहा है? वो तो अपने दोनों लाडलों की कारस्तानियों पर सर थाम कर रह गई थी। मम्मा रिलैक्स यार, कुछ नहीं हुआ। इसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आयरा, बेटा जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। वो खदशों का शिकार थी। मम्मा रिलैक्स, चलें जल्दी से फंक्शन में जाने की तैयारी करें। मैंने कल रात ही मरवान को कह दिया था कि हम लोग ज़रूर आएँगे। इसका मुतवाज़न लहज़ा इन्हें ठटकने के लिए काफ़ी था। ना जाने तुम दोनों क्या करना चाह रहे हो? वो कुछ साख्ता कयास करती कमरे से बाहर निकल आई थी, जबकि वो गहरी-गहरी साँस लेकर खुद को कंपोज़ करती मरवान का नंबर डायल कर चुकी थी, क्योंकि अब इसका सारा गुस्सा इस शख्स पर ही निकलने वाला था। मंगनी का इंतज़ाम सुल्तान महल के वसीअ और ईशान में ही किया गया था। हर सू खुशियाँ रक़्स कर रही थीं।
सियाह रंग के कड़कड़ाते शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर रिवायती मर्दाना शाल डाले अपनी सुनहरी सहरंगेज शख्सियत से लापरवाह महफिल पर छाया हुआ सा महसूस हुआ था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता थामे आयरा ने महफिल का हिस्सा बनते ही मतलातीशी निगाहों से सबसे पहले इस सितमगर को तलाशना चाहा था, जो वाकई आज इसका जब्त आजमाने की दर पर था। वहां की रौनकें उरूज पर थी। सुल्तान जो स्टेज से जरा फासले पर बिस्मिल के हमराही में खड़े अपने मस्खरे दोस्त की शोख मिजाजी पर किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, जब मेन इंद्रेस के पास इसकी गहरी दादी सी निगाह उठी थी और फिर पलटना भूल गई थी। अपने दो आतिशा हुस्न से लापरवाह सियाह रंग नंग मोतियों से मजीन जोड़े में मलबूस सिल्वर कलर की हल्की ज्वेलरी पहने किताबी चेहरे को चेहरा अफरोजी के तमाम हथियारों से लेस किए इसका दिल धड़का गई। घुंघराले गेसुओं को इसकी ख्वाहिश के एहतराम में सलीके से दुपट्टे में छुपा रखा था। वो इर्द-गिर्द से निगाहें घुमाती यकीनन इसी को तलाश कर रही थी। सफ़ेद मरमरी पाँवों में चमकती सियाह रंग सैंडल से लेकर इसकी उठी हुई मखरून नाक में चमकता सियाह पत्थर, हाथों में झूलती वेलवेट की सियाह चूड़ियाँ, गो के इसके हुस्न को मज़ीद निखारती हर चीज़ की ही मकनातीसी शय की मानिंद मरवान को अपनी जानिब खींच रही थी। वो जो बेखुदी सी कैफियत से दो चार इसे तके जा रहा था, बेसाख्ता ही निगाहें चार होने पर मायना फ़ैज़ी से मुस्कुराया, जबकि आयरा ने कत्थई रंग आँखों मज़ीद बढ़ाकर तेज़ से घूरा था। जो बालों में हाथ फेरता, मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता, बिस्मिल से एक्सक्यूज़ करता इसकी जानिब बढ़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इससे तारीफ़ का पहला हक़ छीन ले। इसके हुस्न जमाल पर यारो काले कपड़े कमाल लगते हैं। वो दिलरुबा अंदाज में शेर पर नज़दीक आया। आयरा ने नज़र भर कर इस खूबसूरत शख्स को देखा था, जो सियाही शलवार सूट में मलबूस इसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। अपने ये ठरकी जज़्बात अपने तक महदूद रखा करो ज़रा। वो इसके इशारे पर ज़रा कोने में अलग-थलग को खड़ी होती, घूर कर बोली, जो तफ़सीली नज़रों से इसका तैयारी का जायज़ा ले रहा था। बैरिस्टर साहिबा, ये आप मेरे मनपसंद रंग में इतनी तैयार होकर इसलिए आई हैं ना, ताकि मैं आप पर फ़िदा होकर इस मंगनी से इनकार कर दूँ? वो पुरशौक अंदाज़ में इसका शर्माया लजाया सा रूप निगाहों में बसाता शरारत से बाज़ नहीं आया था। मैं तो यहाँ आई ही ख़ासम-ख़ास आपकी मंगनी के लिए हूँ डियर कज़न, और अगर आपके नेक इरादे और नीयत हमेशा से मुझे देखकर ख़राब है, तो हालात ज़रा नासाज़ हैं, तो मामू जान से जूते खाने के लिए तैयार रहिएगा। वो मुस्कुराते लहज़े में गोया हुई मगर नज़रें इर्द-गिर्द का तवाफ़ कर रही थी। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बेहतर यही है कि तुम्हारी भी सारी तवज्जो मुझ पर ही मरकूज़ रहनी चाहिए। तकरीब का लिहाज़ था, वरना शायद वो आज ही हसीना को अपने नाम कर लेता। मरवान, अपनी आँखों को लगाम डालो, बिस्मिल हमारी तरफ ही आ रही है। इसने बिस्मिल को अपनी जानिब बढ़ता देख मुस्कुरा कर कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे। हेलो, कैसी हो बिस्मिल? मंगनी की बहुत-बहुत मुबारक हो तुम्हें। मरवान के साइड से गुज़रती वो खुश इख़लाक़ लहज़े में गोया होती इसके गले लगी थी। मरवान ने इन मोहब्बतों पर मुस्कुराहट दबाई, वगरना दिल ही दिल में वो यकीनन बिस्मिल के बाल नोचने की ख़्वाहिशमंद थी। थैंक यू सो मच यार, तुमने आने में काफ़ी देर कर दी। वो इसके हाथ से फ्लावर बुके लेती सरसरी लहज़े में गोया हुई थी। हाँ, बस वैसे ही। वो मरवान को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। आयरा फूफो नहीं आई? कान की लौ मसलते जानबूझकर मुदाखलत की। आयरा ने तब कर इसकी जानिब देखा, जो माँ के सामने इसकी इमेज की बैंड बजाकर अम्मी इतना शरीफ बन रहा था। नहीं, वो दरअसल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। सदमा जो काफ़ी गहरा लगा है, वो ना चाहते हुए भी तंज कर गई। इसने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट को बामुश्किल खला घोंटा था। क्या हुआ आंटी को खैरियत? अपनी बड़ी-बड़ी आँखें फैलाए वो मुतजस्सिस लहजे में गोया हुई। आयरा ने एक अचट्टी सी निगाह इसके वजूद पर डाली, जो नफीस से लिबास में मलबूस, लाइट ज्वेलरी पहने, सुनहरे बालों को पुश्त पर खुला छोड़े, हुस्न का चलता फिरता शाहकार थी। आप दोनों ख़वातीन यहाँ क्यों ठहर गई हैं? चलें आ जाएँ। आयरा, आओ तुम्हें मामा से मिलवाऊँ। वो गला खंखार कर तवज्जो दिलाने लगा, तो वो दोनों ही मुस्कुरा कर इसकी पैरवी में आगे बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? वो इनके नज़दीक आकर सलाम करती झट निशात बेगम के गले से लगी थी, जो एक लम्हे को सटपटाई और झट खुद से दूर करना चाहा, मगर फिर बेटे की आंखों में इल्तिजा देख ना चाहते हुए भी इसे गले से लगाया था। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तुम बताओ? तुम्हारी माँ नहीं आई साथ? वो एक नज़र इसके दमकते चेहरे पर डालकर मुतवाज़िन लहजे में गोया हुई। नहीं, वो दरअसल मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो बस इसलिए। इसने कहते साथ लब चबाए, जबकि मरवान अब इन्हीं बातों में मसरूफ़ देख अपने दोस्तों की जानिब बढ़ा। वैसे भी अब रिंग सेरेमनी का वक़्त था। लॉन के ऐन वसत में खड़े वो दोनों ही इस वक़्त महफ़िल में मौजूद लोगों की तवज्जो का मरकज़ थे। ये मंज़र देखना ना चाहते हुए आयरा की आँखें चलने लगी थीं। मरवान ने एक नज़र चेहरे पर सपाट तासुरात सजाए खड़ी आयरा को देखा
और फिर एक नज़र खुद को वाहियाना नज़रों से देखती बिस्मिल को। मरवान को एकदम ही इस लड़की पर तरस सा आया था, मगर वो क्या करता? आयरा की हठधर्मी ने हालात ही ऐसे बना दिए थे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। चलें बेटा, पहले आप बिस्मिल को रिंग पहनाएँ। शौकत साहब की आवाज़ पर मरवान ने एक नज़र साथ खड़े माँ-बाप को देखा। सीधे हाथ के मिडल फिंगर में अंगूठी पहन तो हर सू तालियों की आवाज़ से गूंज उठी। फिर यही अमल बिस्मिल की जानिब से दोहराया गया। तो एक बार फिर तालियों की गूंज आयरा को अपनी खुदसरी पर तमाचों की मानिंद महसूस हुई थी और बस यही इसके ज़ब्त की इंतहा थी। वो मज़ीद ज़ब्त नहीं कर सकी और तेज़ी से हुजूम से निकलती एक तरफ को आ गई थी। इस सब के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अपनी जानिब मरवान की नज़रें महसूस कर वो निगाहों में लातादार शिकवे से मोए देखती महफ़िल से निकल आई थी। वो इस वक़्त घर के अंदरूनी हिस्से में हाल में मौजूद थी। अगर मरवान की सख्त हिदायत ना होती तो वो कब का इस घुटनज़दा माहौल से निकल चुकी होती। इसे बैठे ना जाने कितनी देर बीत गई थी। यकीनन अब महफ़िल अपने इख्तिताम की जानिब गामज़िन थी। घड़ी 12 का इंचा अबूर कर रही थी। वो मेहमान खाने से निकलकर घूमती-घुमाती स्विमिंग पूल की साइड निकल आई थी। बेसाख्ता ही लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट खिल गई थी। इस जगह से अनगिनत यादें वाबस्ता थीं। सीने पर बाजू लपेटे वो इस तारीख का हिस्सा मालूम दे रही थी। जभी किसी ने इसे काब से अपने हिसार में लिया था, वो बुरी तरह सटपटा कर होश में आई, मगर इर्द-गिर्द फैलती इसकी खुशबू महसूस कर वो पुरसुकून हुई थी। यहाँ क्यों आ गई? वो दोनों इस वक़्त घर के दूसरे हिस्से में मौजूद थे, जो तारीकी में डूबा हुआ था। कानों के पास से उभरती सपाट आवाज़ की सरगोशी पर वो इसकी सरगिरह में बुरी तरह कसमसाई थी। "मरवान छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा।" इसने खबरदार करना चाहा, जो इसके सर पर टिका दुपट्टा एक तरफ को करता इसके बालों की महक अपनी साँसों में उतार रहा था। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रही हो? वो सब मेहमानों से फारिग होता अंदर आया तो इसे गायब पाकर वहाँ चला आया था। जानता था कि घर का ये हिस्सा इसकी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था। तुम मुझे छोड़ रहे हो या फिर मैं शोर मचाऊँ? इसकी पुश्त मरवान की जानिब थी, जबकि हद दर्जा गुर्बत पर दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। मैं कहता आज तुम शोर मचा ही लो, ताकि ये लोग जल्दी से तुम्हें मेरे हवाले कर दें। इसके बालों में अपना गाल सहलाता वो शरारती लहजे में बोला था। तुम मुझे छोड़ आए हो या फिर मैं तुम्हें इस स्विमिंग पूल में धक्का दे दूँ? वो दाँत पीस कर गोया हुई थी। अगर मेरी मोहब्बत के हिसार से खुद को आज़ाद कर सकती हो तो कोशिश करके देख लो। वो मुतबस्सम लहजे में गोया हुआ था। मेहरबान तंग नहीं करो, कोई आ जाएगा। मैं फ़िज़ूल में किसी किस्म का कोई ड्रामा अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। वो इस बार सर्द लहजे में फुनकारी, इसके लहजे की तलख़ी महसूस कर वो सर्द आह ख़ारिज करता फ़ासे पर हुआ, जो तेज़ी से फ़ासला कायम करती इसकी जानिब पलटी थी। चलो मुझे घर छोड़ दो। वो इसकी मख़मूर निगाहों से ख़ाइफ़ नज़रें चुरा कर बोली। घर में ही तो खड़ी हो जाना। वो एक बार फिर पटरी से उठ रहा था। तुम मुझे घर खुद छोड़ने जाओगे या फिर मैं मामू से कहकर किसी ड्राइवर के साथ चली जाऊँ? वो दाँत पीस कर गोया हुई आयरा की घबराहट महसूस कर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराया था। अच्छा चलो, अपने गिर्द लिपटी चादर उतार कर इसके कंधों पे डालता, इसे आगे चलने का इशारा करता, इस बार तमीज़ के दायरे में गोया हुआ। तो वो इसे एक खफ़ा निगाह से नवाज़ती तेज़ी से वहाँ से निकल आई थी। सदा शुक्र था कि सब मेहमान जा चुके थे। इसे देखते ही ड्राइवर ने आगे बढ़कर इसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था। मरवान की ड्राइविंग सीट सँभालते ही एक प्रोटोकॉल की गाड़ी के साथ निकली थी, जिन्हें वो फ़िलहाल हाथ के इशारे से मना करता। तेज़ी से गाड़ी कारपोट से निकाल लाया था। आप बताओ, तुम महफ़िल छोड़कर अंदर क्यों चली गई थी? वो जो सड़क पर नज़रें मरकूज़ किए बैठी थी, इसकी आवाज़ पर चौंकी। तो वहाँ खड़ी होकर तुम्हारी दीवानी बिस्मिल साहिबा की तुम्हारे लिए मोहब्बत देखती। वो खफ़ा हुई। मरवान ने इसका हाथ पकड़कर ऐन दिल के मकाम पर रखा था। अभी से हार गई, अभी तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। वो एक नज़र इसके ज़ब्त के सुर्ख़ पड़े चेहरे पे डालकर जताते लहजे में बोला, जबकि हाथ ऊँधा हो इसकी गिरफ्त में कैद था। मम्मा अपने लाडले भतीजे की खबर लेने का इरादा रखती हैं। सोचा तुम्हें बता दूँ। इसे सर झटक कर ज़ेरे लब मुस्कुराहट रोकी। क्यों, क्या आज सुबह से बैरिस्टर साहिबा पेशी भुगत रही हैं? वो आईब्रो उठाकर शरारती लहजे में बोला। जी, मेहरबानी थी आपकी। वो तन से बाज नहीं आई और एक झटके से अपना हाथ इसकी सख्त गिरफ्त से आज़ाद किया। इसे इसकी हरकत एक आँख न भाई, जभी ज़बरदस्ती हाथ थाम कर साहब मकाम पर रखा और एक मुस्कुराती निगाह खुद को दूरती अपनी जंगली बिल्ली पर डाली, जो इसकी शाल में लिपटी अपनी-अपनी सी लग रही थी। मैं क्या कह रहा था आयरा? वो एकदम पुरसोच हुआ, वो मुतज्जिब हुई। क्या कह रहे थे? माथे पर ना समझी के बल नमूदार हुए। तुम बुर्का लेना शुरू कर दो। आज जब सब तुम्हें घूर-घूर कर देख रहे थे तो मुझे सब ज़रा अच्छे नहीं लगे। इसे एकदम ही सबकी सताइशी भरी निगाहें याद आईं, जिसके वजूद टिकी थी। कौन-सा टोपी वाला अबाया ना ले लूँ? इसने दाँत पीसे। ये आदमी से और कितना अपना पाबंद बनाना चाहता था। गुड आइडिया। और हाँ, आइंदा ये रंग ना पहनना। इस वक़्त तक जब तक आप मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में ना आ जाएँ। इसका लहज़ा जज़्बात से बोझल खुद में बेपनाह खुमार समेटे इसकी पलकें लरज़ गई थीं।
अपने हाथ के नीचे इसका दिल ज़ोरों से धड़कता महसूस हुआ था। सुल्तान साहब, ये आप क्यों नहीं कहते कि आयरा खुद को 7 पर्दों में छुपा लो? वो अपनी घबराहट पर काबू पाती दाँत पीस कर बोली, "वो आइडिया बुरा नहीं है वैसे। एक बार मेरी दस्तरस में आ जाएँ, फिर आपको मोहब्बत के नए भाव से आशना कराएँगे।" इस बार इसका थामा हुआ हाथ होठों से लगा था। वो एक झटके से गाड़ी इलाही बिल्डिंग के सामने रोक चुका था। मरवान इसके चेहरे पर फूटती हया की लाली इसे एक बार फिर अपना दीवाना कर गई थी। जाओ लड़की, इससे पहले कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। वो ऑटोमेटिक कार्ड ओपन करता निगाहों का रुख फेर गया। बुरी तरह लरसती आयरा गार्ड्स की गार्ड दरवाज़ा खोलने पर तेज़ी से घर में दाखिल हुई थी। आज तो सुल्तान साहब के तेवर ही बदले हुए थे। वो आज ज़रा देर से लॉ फ़र्म पहुँची थी और आते साथ ही अपने चैम्बर की जानिब बढ़ी थी। इल्हाम के सलाम का जवाब देती वह हद-ए-दर्जा संजीदा दिखाई दे रही थी। कैसी हैं आप मैडम? वो इस हद तक संजीदा दिख देख बिना बात गर्व से बोली थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ घर में सब ठीक-ठाक हैं? वो माथे पर ढेरों बल सजाए गोया हुई। जी अल्लाह का करम आप ठीक तो हैं ना मैडम? कुछ परेशान लग रही हैं। इस बार वो चौंकी, क्या इसका सर्द अंदाज़ दूसरों को भी बखूबी महसूस हो रहा था। जो शख्स हमारे केस में मददगार साबित होने वाला था, इत्तला मिली है कि वो मारा गया है। वो सपाट लहजे में आगाही देने वाले लहजे में बोली, क्या? मगर इस सब में इस मासूम का क्या कसूर था? इल्हाम को अफ़सोस हुआ। इल्हाम, अगर वाक़ई हम अदालत में ये बात साबित ना कर सके कि ख़तीब जहांगीर सुल्तान का कातिल नहीं है, तो फिर तुम बताओ क्या होगा? वो एकदम ही चेयर पर पीछे को होकर बैठती, पुरसोच सी सवालिया लबो लहज़ा अपनाकर गोया हुई थी। ज़ाहिर-सी बात है, ये ख़तीब सुल्तान को सदा हो जाएगी। वो अपनी दानिस्ता में नासमझी से बोली तो आयरा मुस्कुराई। मगर तुम जानती हो ऐसा नहीं होगा। भले मैं ये केस हार भी जाऊँ, मगर खतीब को सज़ाए मौत कभी नहीं होगी। वो ज़रा हल्की से फनकारी थी। मगर क्यों मैडम? वो माथे पर हज़ारों बल सजाए ज़रा नासमझी से बोली थी। क्योंकि खतीब आलमगीर कोई आम शख्स नहीं, बल्कि इस स्टेट की एक जद्दी पुश्ती सियासी पार्टी के लीडर का बेटा है। वो ख़यालों में खोई थी। अगर ऐसी बात है तो आपके मामू कौन-सा कम है? आयरा ने समझ कर सर हिलाया था। यही तो बात है कि ये केस अगर मैं ना जीत सकी तो जीत तो सुल्तान खानदान की भी मुमकिन नहीं। मगर हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि इस कत्ल केस को सालों के लिए लटका दिया जाए और जिस दौर में जिसकी शहादत की ज़्यादा गड़ी चढ़ी हुई हो, जज फैसला इसी के हक में देगा। वो तल्ख़ लहजे में फुनकारी थी। अब इतना भी अंधा कानून नहीं है हमारे मुल्क का। वो बुरा मान गई थी। अंधा कानून? मिस इल्हाम ये बताएँ कि इस मुल्क में कानून है? है ही कहाँ, वो इज्तिमाइया निगाहों से देखकर ताज्जुबी लहजे में बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझ नहीं पा रही। इस बार वो बेचारगी से बोली थी, यही कि अगर मैं ये केस लड़ने से इनकार कर दूँ, तो वो हाथों में मौजूद बॉल पेन उँगलियों में घुमाती, इसकी राय जानना चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? वो हवन्नक हुई। मिस इल्हाम होने को तो मेरा कत्ल भी हो सकता है। वो साफ गोई का मुज़ाहरा कर रही थी। ओह माय गॉड! क्या आपको किसी ने कत्ल की धमकी दी है? वो परेशान लहजे में सवालिया बोली थी। अभी तक नहीं, मगर ना जाने क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नाम की पर्ची ज़रूर कर चुकी है। वो कातिलाना अंदाज में मुस्कुराई थी। तो फिर मैडम, आपकी जान को खतरा है। जान का खतरा किस वकील को नहीं होता इल्हाम साहिबा? वो हद से ज़्यादा पुरसोच दिखाई दे रही थी। फिर फिर आप क्या करेंगी? वो मुतजस्सिस हुई। केस हारने का इंतज़ार। इस बार इल्हाम की आँखें खुली की खुली रह गई थी। मैडम, आप अपने करियर का पहला केस हार जाएँगी। वो हैरत की ज़्यादती से मुँह खोल गई थी। नहीं, नहीं, तुम देखना, मैं ये केस हार कर भी बहुत कुछ जीत जाऊँगी। वो ज़ुमानियत से मुस्कुराई थी। हेलो, मिस इल्हाम कहाँ खो गई हैं आप? गायब दिमागी से बैठी इल्हाम के सामने चुटकी बजाई। वो गड़बड़ा कर होश में आई थी। कुछ नहीं मैडम, वो बस मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। वो गड़बड़ा कर बोली थी। अच्छा, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी तो मँगवा दें प्लीज़। श्योर मैडम। वो सर हिलाती केबिन से बाहर निकल गई थी, जबकि इसकी मुस्कुराती निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। अजमल, ये तुम्हारी भांजी क्या करती फिर रही है आजकल? सुल्तान महल के मेहमान खाने में इस वक्त अजमल साहब के कुछ सियासी दोस्त अहबाब जमा थे। क्या मतलब है? वो समझकर भी अनजान बने थे। मतलब तुम्हारी भांजी का तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा होना कुछ अजीब नहीं है। अवाम पर तुम्हारा क्या तासुर जाएगा? शौकत कर तेजी मुंह में सिगार दबाए तफ्तीश भरे लहजे में बोले।
कोई तो आँसू नहीं जाएगा। वो बज़ार आजकल इस आलमगीर के बेटे के चक्कर में है, इसलिए इतना फड़फड़ा रही है। वो नागवारी से फुनकारे थे, वो हमारी राह का बहुत बड़ा काँटा साबित हो सकती है अजमल, इन्होंने बावर कराते लहजे में कहा। तुम फ़िक्र ना करो, वक़्त पड़ने पर मैं राह में आने वाले रोड़ों को हटाना खूब जानता हूँ। वो नागवार लहजे में गुर्राए थे। सोच लो, इस बार जो भी कदम उठाओ तो सोच समझ कर उठाना, क्योंकि तुम्हारा कोई भी कदम पार्टी की साख को नुकसान पहुँचा सकता है। इन्होंने तंबी ज़रूरी समझी। वैसे माइंड ना करना अजमल, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी भांजी खतीब के चक्कर में है, जबकि मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारा बेटा भी इस लड़की के चक्कर में ही इसके इर्द-गिर्द मंडलाता रहता है। फैयाज़ साहब के कहने पर ही ना चुप लगी थी। ये जो मर्दों के शाना-बशाना चलने वाली लड़कियाँ होती हैं ना, ये ऐसे ही सबको अपनी उँगलियों पर नचाती हैं। लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो, मेरी बहू बिस्मिल ही बनेगी। वो शायद भूल गए थे कि तल्ख़ अल्फ़ाज़ अपनी ही भांजी के लिए बोल रहे थे। कह तो तुम ठीक रहे हो, औरत जब तक घर में रहे तो काबू में रहती है, जहाँ इसे बाहर की हवा लगी वो मर्द को पाँव की जूती समझने लगती है। दूसरों ने भी इसकी राय का इत्तेफ़ाक किया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या बातें चल रही हैं? वो सभी मरवान की आवाज़ पर चौंके। आए बरखुरदार, अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। शौकत साहब दामाद को देख खुशी से चौड़े हो गए थे। जी, खैरियत? वो वन सीटर सोफ़े पर बैठा इस्तेफ़सामिया नज़रों से देखकर गोया हुआ। अजमल, मैं सोच रहा था कि इलेक्शन से पहले हम क्यों ना अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें और इन दोनों बच्चों की शादी की डेट अनाउंस कर दें। मरवान के लबों की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी। अंकल, इतनी जल्दी क्या है? अभी जहांज़ीब भाई के कत्ल का केस अदालत में लटका हुआ है। मेरी और बिस्मिल की मंगनी को अभी अरसा ही कितना हुआ है, तकरीबन 1 माह। वो मुतवाज़िन लहजे में बोला। तो बेटा, ये तो अच्छी बात है ना कि दुश्मन को याद रहेगा कि वो कुछ भी कर ले, मगर हमसे ज़्यादा ताकतवर हरगिज़ नहीं हो सकता। अजमल साहब के लहजे में गुरूर बोल रहा था। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई अंकल। फिलहाल मेरा सारा ध्यान पॉलिटिक्स पर है और इलेक्शन से पहले इन घरेलू पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी वक़्त नहीं दे सकता। सो मेरी तरफ से सॉरी। वो हाथ उठाकर बोलता खुद को इस किस्से से बाहर निकाल गया। वहाँ मौजूद सभी 90s के सियासी खापड़ों का कहका पड़ा था। बिस्मिल की मंगनी के बाद से इन दोनों में बातचीत न होने के बराबर थी। ऐसी गंभीर सूरत-हाल में वो खुद को बहुत अकेला-अकेला फ़ील कर रही थी। उस रोज़ बाद अदालत की पेशी थी। जब भी वो कुछ सोचती या सुल्तान महल चली आई थी। अस्सलाम वालेकुम मायरा बीबी। वालेकुम अस्सलाम। मामू-मामी कहाँ हैं? इसने बराह रास्त सवाल किया। मैडम, सर तो छोटे साहब के साथ काम से इस्लामाबाद गए हुए हैं। अलबत्ता मैडम अपने रूम में मौजूद हैं। इसकी इत्तला पर वो सर हिला गई। तभी आजकल मौसूफ़ का नंबर बन जा रहा था। चलें ठीक है, मैं मामी के रूम में हूँ, 2 कप कॉफ़ी ले आइएगा प्लीज़। वो इस्तेकाम आमेज़ लहजे में हुक्म सुनाती, दो तरफ़ा सीढ़ियाँ अबूर करती अपनी प्यारी मामी जान के रूम में गई थी। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? हौले से दस्तक देती वो इजाज़त मिलते ही रूम में दाख़िल हुई थी। तुम यहाँ? इनकी पेशानी पर नागवारियत के बल सिमट आए थे, चेहरा गुस्से की ज़्यादती के बाइस सुर्ख़ पड़ गया था। क्यों? मैं अपनी मामी से मिलने नहीं आ सकती? वो लाड से गले में बाहें डाल गई, जो इन्होंने खुद पर एक कौल से चढ़ा रखा था, इसके वालिहाना अंदाज़ पर छटपटा कर रह गई। पीछे हट जाओ आयरा, मैं नहीं चाहती कि मैं जज़्बात में कुछ ऐसा कह दूँ जो तुम्हारा दिल दुखाने का बाइस बने। वैसे भी तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। वो सपाट लहजे में बोली तो वो नरमी से मुस्कुराती इनका हाथ थाम कर पास ही बैठ गई। सॉरी मामी, अगर आप मेरी किसी बात से हर्ट हुई हो, मैं यहाँ आपसे माफ़ी ही तो माँगने आई हूँ। वो ज़रा नादिम लहजे में बोली थी, एक वही तो थी जो इससे मोहब्बत करती थी। किस बात की माफ़ी? हमारा खून होकर हमारे खिलाफ जाने की माफ़ी? वो इस्तेज़ाइया पुनकारी थी। आप थकती नहीं हैं अदाकारी करते-करते? वो दुःख से बोली। कहना क्या चाहती हो लड़की? वो दुरुस्तगी से बोली। आप भले ही मुझसे अपना आप कितना ही क्यों ना छुपा लें या फिर बुरा-भला कह लें, मगर मैं आपके हर अंदाज़ से वाकिफ़ हूँ। इसके लहजे में मान था। यहाँ क्यों आई हो? वो लहजे में बेपनाह नफ़रत समाई नागवारी से बोली, जो वाज़ेह ढोंग दिखाई दे रही थी। कोई समझे ना समझे, मगर आयरा तो इनके हर अंदाज़ से वाकिफ़ थी। कहा तो है अपनी प्यारी मामी जान से माफ़ी माँगने आई हूँ, अपनी प्यारी सी दोस्त को राज़ी करने जो मुझसे रूठ गई हैं। वो रुआँसू लहजे में बोली तो इनका ये बनावटी रवैया भी बहुत तकलीफ़ पहुँचा रहा था। किस-किस बात की माफ़ी माँगोगी आयरा? अपने मामू से नफ़रत जताने की या फिर कत्ल का इल्ज़ाम लगाने की या फिर मेरे बेटे का दिल तोड़ने की? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। मामी, सच क्या है ये आप भी जानती हैं और मैं भी। वो नम निगाहें उठाकर इसके थामे हुए हाथ लबों से लगा गई। इनकी आँखों से आँसू टपक पड़े थे। मैं ऐसा क्या जानती हूँ आयरा? तुम बताओ ना मुझे। वो निढाल से लहजे में सवालिया गोया हुई। आपने तो मुझसे हर हक ही छीन लिया है। मामी ना सही, फूफी होने के नाते तो आप मुझे गले लगा ही सकती हैं।
वो एकदम ही शिद्दत से रोती इसे सीने से लगा गई, जो इनके मरहूम भाई की इकलौती निशानी थी। आयरा, मेरे बच्चे, मत खेलो इस आग से, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे और फिर तुम्हारे हाथ सिवाय खसारे के कुछ नहीं आएगा। वो जो पहले ही एक बेटे का रोग दिल से लगाए बैठी थी, शिद्दत से उसे रोई थी। नहीं मामी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी आयरा कमजोर नहीं पड़ेगी। मैं हमारे मुजरिम को सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। वो इनके आँसू पोंछती उम्मीद भरे लहजे में बोली थी, बेटा, लेकिन इस सब में मेरे बच्चे का क्या कसूर है? तुम इसे किस बात की सज़ा दे रही हो? वो इसका चेहरा हाथों में लेकर थाम चुकी थी। मामी, मैं इसका दिल नहीं दुखाना चाहती, मगर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर वो मेरा साथ दे तो निशात बेगम के सर तासुरात देख एकदम ही इसकी ज़बान को ब्रेक लगा था। अपने मामू से नफ़रत करना छोड़ दो। मरवान और मैं तुम्हें इस वक़्त तक नहीं मिल सकते जब तक तुम अपने मामू के दिल में जगह ना बना लो। वो कड़े दिल से बोली थी, मतलब आप मुझे इनडायरेक्टली अपनी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाने का बोल रही हैं? क्योंकि अजमल सुल्तान इस ज़िंदगी में आयरा इलाही से मोहब्बत करें, ऐसा होना तो नामुमकिनात में से है। वो अपने जज़्बातीपन पर काबू पाती इससे मुस्कुराई थी, तो फिर बेहतर यही है कि तुम हमें भूल जाओ। वैसे भी मैं फ़ैसला कर चुकी, इस ख़ानदान की बहू अब सिर्फ़ बिस्मिल ही बनेगी। वो भी अपनी कैफ़ियत पर काबू पाती सख्ती से बोली। वो दुःख से इन्हें देख कर रह गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए मामी माँ सिवाय आपकी दुआओं के। इनके दोनों हाथों पर अकीदत से बोसा देते वो दिल में ढेरों बोझ लिए वापस पलट आई थी। नीलंगो आसमान को अब्र आलूद बादलों ने अपनी छाँव में ढक रखा था। आज मौसम के तेवर खासियत से चिराहट का शिकार थे। सूरज गोया रूठ कर भीगी बादलों में जा चुका था। मौसम में खुनकी सी घुली थी आयरा, अंगड़ाइयाँ भरती बेदार हुई। आज वो जुबैर बेगम की तबीयत की नासाजी के बायस फर्म जाने का इरादा तर्क कर चुकी थी। गुलाबी रंग सिल्की नाइटी सूट में मलबूस वो जमाइयाँ रोकती, बिस्तर से पाँव फर्श पर रखती, धीरे से कदम उठाती, ग्लास विंडो के पास आ खड़ी हुई थी जब ये अचानक से इसका मोबाइल बज पड़ा था। वो कदम उठाती बेड के सराहने रखा मोबाइल उठाने की गर से नज़दीक आई, मगर स्क्रीन पर चमकता अननोन नंबर देख इसके माथे पर सैकड़ों बल पड़े थे। ये कौन है? खुद साख्ता कयास करते गला खंगाल कर कॉल पिक की। हेलो आयरा इलाही स्पीकिंग। समातों से टकराती इस छोला छुआला लड़की की आवाज़ सुन मुकाबिल वजूद के लबों पर खबासत भरी मुस्कुराहट खिली थी। आपकी आवाज़ की ये कड़क बहुत नशीली है आयरा साहबा, किसी पुरानी शराब के नशे की मानिंद जो एक बार दिमाग पर चढ़ जाए तो सुरूर की मस्ती में मदहोश इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मुकाबिल हस्ती की इंतहाई गलीज़ आवाज़ सुनकर आयरा को शदीद तप चढ़ी थी। क्या बकवास है? कौन बात कर रहा है? इसका लहज़ा इंतहा का सिर था। कॉल वो रिकॉर्डिंग पर लगा चुकी थी। आपकी मौत जो दिन-ब-दिन आपसे करीब से करीबतर होती चली जा रही है, मगर आप हैं कि सर पर मंडलाते इस खतरे को देखने को तैयार नहीं हैं। वो ज़ुमाइनी लहज़े में मुस्कुराया। किसके पालतू बात कर रहे हैं? मुकाबिल आयरा इलाही थी जिसने शायद डरना और घबराना सीखा नहीं था। लड़की, तुम इंतहा की पटाखा चीज़ हो। अब तो ये कमबख्त दिल मुझे बुरी तरह उकसा रहा है कि आपको एक बार अपने बिस्तर की ज़ीनत बनाया जाए। मुकाबिल की कमीनगी पर इसका चेहरा गुस्से की स्याही से सुर्ख पड़ा जो आवाज़ से ही कोई उबर-दराज सकता। बकवास बंद करो, अपनी बेहुदा इंसान समझे। वो बिलबिला उठी थी। सिर्फ सुनकर ही बिलबिला उठी हैं बैरिस्टर साहिबा, अगर जो मेरी सोच कल का सूरज तुलू होने से कब हकीकत का स्वरूप धार ले तो फिर क्या करेंगी? वो इसका ज़ब्त आज़मा रहा था। कौन खबीज़ इंसान बात कर रहे हो? बगैरत इंसान, अब फूट भी दो कि कॉल क्यों की है? वो इस कॉल का मकसद तो खूब समझ रही थी। अपने मामू के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो लड़की, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज से कई साल कब्ल तुम्हारे बाप का हुआ था। धमकी आमेज़ लहज़े में कहकर जानदार कहका लगाया था। इसका चेहरा गुस्से की तमाज़त से तप उठा था। शट अप! खबरदार, खबरदार जो अपनी नवाज़-ज़बान से मेरे बाप का ज़िक्र भी किया तो। वो इंतहाई दुरुस्तगी से चिल्लाई थी, मगर दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़िता हो गया था। इसने झटके से मोबाइल गले रखा। रिलैक्स आयरा, इन लोगों का मकसद महज़ तुम्हें डराकर अपने मकसद से हटाना है, मगर तुम ऐसा कुछ नहीं होने दोगी। तुम हिम्मत नहीं हारोगी, समझ गई? वो गहरे-गहरे साँस भरती खुद को दिलासा देती पूरे वजूद से लरज़ी थी जब इसका मोबाइल एक बार फिर थरथराया था। इसने तैश में बगैर देखे कॉल रिसीव की थी। समझा देना मेरे प्यारे मामू जान को कि इस बार वो अपने नापाक इरादों में हरगिज़ भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आयरा की आवाज़ में लर्ज़िश महसूस कर दूसरी जानिब मरवान के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या कह रही है लड़की? क्या हुआ है? इतना गुस्से में क्यों हो? वो एकदम खामोश हुई। कॉल से मोबाइल हटाकर देखा तो दूसरी जानिब मरवान था। वो खुद को कोसती आँखें मीच गई। क्या हुआ आयरा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसकी खामोशी पर वो ज़रा तेज़ लहजे में बोला। कॉल क्यों की? इसका लहज़ा इंतहा का सर था। वो खुद पर ज़ब्त कर चुकी थी। मैं पूछ रहा हूँ, पहले इसका जवाब दो। किससे बात कर रही थी तुम? इसका इनग्रोन करना एक आँख नींद आया था। आपके वालिद साहब के किसी फालतू का फ़ोन आया था। मुझे धमकी लगा रहा था मैं इसके खिलाफ ये केस लड़ना बंद कर दूँ। वो इन तंज़िया अंदाज़ में फुनकारी, मगर चाहकर भी इस शख्स की ग़लीज़ लफ्ज़ों के बारे में नहीं बता सकी। तुम क्यों हर वक़्त खुद को और मुझे परेशान रखती हो?
2 लम्हों का सुकून नहीं है तुम्हें? वो जिससे बहुत अच्छे से फ़ोन कॉल की थी, दूसरी जानिब से इस तरह की बात सुनकर इसका लहज़ा तल्ख़ हुआ। रख रही हूँ मैं, वो सर झटक गई। बात सुनो मेरी, मम्मा बताई थी कि मेरे पीछे तुम घर आई थी। इसने नामुश्किल खुद पर काबू पाकर तेज़ी से सवाल किया। क्यों नहीं आ सकती क्या? वो पहाड़ खाते लहजे में बोली थी। बिल्कुल आ सकती हो भई, तुम्हारा अपना घर है। मगर मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले कभी मेरी मौजूदगी में नहीं आई, तो मेरे जाते ही वहाँ आने का ख़्याल कैसे आ गया? इसके लहजे की शोखी पर आयरा ने दाँत पीसते जैसे बस मौका चाहिए होता था। मामू चाहते हैं कि अब तुम ज़रा सीरियस होकर सियासत में दिलचस्पी लो। मुस्तकबिल के कभी ना होने वाले वज़ीर-ए-आज़म, मगर तुम्हें हर वक़्त ठग झाड़ने से ही फुर्सत नहीं है। बेजार लहजे में बोलती वो फेस वॉश करने की गर्ज से वॉशरूम में आ गई थी। जानती थी कि इस चिपकू शख्स से इतनी जल्दी तो पीछा नहीं छोड़ना। ये तुम हर वक़्त मुझे कभी ना होने वाला सियासतदान क्यों बोलती रहती हो? क्या पता अगला वज़ीर-ए-आज़म मैं ही बनूँ? वो सोफ़े की पृष्ठ पर सर गिरा था। वो तबस्सुम लहजे में गोया हुआ था। खुशफ़हमी है आपकी। वैसे सियासत में जाकर तुम शरीफ रहो, ऐसा होना तो नामुमकिनात में से है। और अगर तुम भटक गए तो फिर मैं तुम्हें राह-रास्त पर लाना भी खूब जानती हूँ। फिर मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो यही बेहतर नहीं है कि तुम मुस्तकबिल में सियासतदान बनने के बजाय सिर्फ़ एक अच्छे इंसान बनकर रहो। मरवान की क़यास और राही पर दिलकशी से कहका लगाया था। कितने आगे का सोच रखा है तुमने? वो महफ़ूज़ हुआ, मगर फिर भी मेरी सोच तक रसाई नहीं पा सकते। वो तफक्कुर से बोलती अपना चेहरा वॉश कर रही थी, मोबाइल स्पीकर पर था। और तुम भी बैरिस्टर साहिबा, इसकी गंभीर आवाज़ पर हाथ दहज उठे थे, हाथ से टूथब्रश नीचे गिरा था। ये क्या कर रही हो तुम? इसने अजीब सी खटपट की आवाज़ महसूस कर नासमझी से पूछा। मुँह धो रही थी, फिलहाल अब रूम में आ गई हूँ। वो समझ कर सर हिला गया था। अब बता भी दो कॉल क्यों की थी? वो जिद हुई जो हर बात बोलने में घंटों लगाता था। पता नहीं, भूल गया। जब याद आएगी तो बताऊँगा। वो इसकी बेज़ार आवाज़ से खत उठा रहा था। ओके, तो फिर अब कॉल भी जब ही करना। मुतनक्क कर रह गई। खबरदार जो तुमने मेरी कॉल बंद की। वो खफ़ा हुआ। क्या है भैया, सुबह-सुबह कौन-सा बुखार चढ़ गया है तुम्हें? कितनी सेल्फ़िश हो तुम। आज हम पूरे 1 महीने बाद एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, मगर मजाल है जो तुम्हें ज़रा मेरी याद आई हो। वो शिकवा के ना लहजे में बोला था। कितना झूठ बोलते हो तुम। अभी 4 रोज़ कबल ही बात हुई है हमारी। इसने जताया। जी, वो बात जिसने आप फुल छोला ज्वाला बनी हुई थी। इस बार वो मुस्कुराई और यकीनन इस लड़की की कातिलाना मुस्कुराहट किसी को भी घायल कर सकती थी। काश कि तुम इस वक़्त मेरे सामने होतीं। दूसरी जानिब से इसकी जज़्बात से बोझिल आवाज़ हाथों से टकराई थी। क्यों? फिर क्या होता? वो समझकर भी अनजान बनी थी, चेहरा दहक उठा था। दिल की धड़कनें कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। ताकि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट चुरा कर अपने पास महफूज़ कर लेता और तुम्हारे चेहरे पर बिखरी हया की डाली के दिलकश रंग फुर्सत से निहार था। क्योंकि इन गुनहगार आँखों को ऐसे नज़ारे तो कम ही देखने को मिलते हैं। दूसरी जानिब की बेताबी महसूस कर वो बुरी तरह दहक गई थी। उठो सुस्त इंसानों, जाकर मुँह हाथ धो। मैं जा रही हूँ मम्मा के पास, तबीयत ठीक नहीं है इनकी। वो जो मज़ीद कोई शोक जुमला कहने का इरादा रखता था, एकदम चौंक उठा था। क्या हुआ पप्पो को? लहजे में तफ्तीश हया थी। कुछ ख़ास नहीं, बस ज़रा तबीयत नासाज़ है। वो हल्के-फुल्के लहजे में बोली। अच्छा, आता हूँ मैं, अस्पताल चलते हैं। इसके लहजे में परवाह थी जो हमेशा ही आयरा का दिल तस्ख़ीर कर लेती थी। हाँ, ठीक है, आ जाओ। वैसे भी मेरी बात तो सुनेंगी नहीं, क्या पता अपने भतीजे की मान लें। वो जानबूझकर तंज़िया अंदाज़ में बोली। भतीजे की बात फूफो तो मान लेती हैं, उफ़! इनकी बेटी कब मानेगी? वो सर्द आह खारिज करके बोला। तुम्हारे ख्वाबों में तो शायद मान ही लेगी। वो शरारत से कहती खट से फ़ोन बंद कर चुकी थी। उफ़ ज़ालिम, तुम तो ख्वाबों में बस लड़ती ही नज़र आती हो। वो तासुफ़ी अंदाज़ में सोच कर नफ़ी में सर हिलाता, खुद उठकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा था। जारी है। तो जी जनाब, आज की इस आप लोगों को कैसी लगी अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।